फ्रेंड्स, सो अपने एडुटेरिया हाफ ईयरली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट का सेकेंड टेस्ट देख रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So the first question is, which organization has recently launched the country's first nano urea liquid? Okay, so इट वॉज बेसिकली लॉन्च बाई इफ़को. इफ़को हमारा क्या है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव है. और ये सिर्फ जो है कंट्रीज़ का फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड नहीं था, ये वर्ल्ड्स का मतलब वर्ल्ड का फर्स्ट जो है ये मतलब कि नैनो यूरिया लिक्विड था. सेकंड देखते हैं, विच द फॉलोइंग कंपनी प्लान्स टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल प्रोजेक्ट. तो ये बेसिकली जो है गूगल के द्वारा एक प्रोजेक्ट ये है लॉन्च किया गया है, जिसमें जो है ये यूएसए को, ब्राज़ील को, अर्जेंटीना को और उराग्वे को, मतलब बेसिकली नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो है मतलब ये जो है सी केबल प्रोजेक्ट से कनेक्ट करने की बात की गई है. विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च द कवच पर्सनल लोन स्कीम. तो ये कवच पर्सनल लोन स्कीम जो है ये लॉन्च किया गया एसबीआई बैंक के द्वारा. विच रैपिड एंटीजन टेस्ट किट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च टू टेस्ट फॉर द कोविड-19 एट होम. ओके, सो ये इसका नाम रखा गया है कोविसेल्फ. Let's see the next question. The next question is, recently which ministry announced the opening of the one-stop center in the Indian embassy of the 9 countries? Okay, so ये basically जो है जो भी वुमेन जो वायलेंस फेस करती हैं या जो वायलेंस के जो विक्टिम है वो उनके लिए ये बेसिकली जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है. इसमें क्या होगा, इनको जो है वन रूफ के अंडर में मतलब कि पुलिस एड, लीगल एड या कोई टेम्प्रेरी शेल्टर वगैरह या कोई साइकोलॉजिकल हेल्प वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 6. Recently, which state government has increased the number of the working days under Manrega from 100 to 150? Okay, so the answer is Uttarakhand government. Uttarakhand government. What is the theme of the 29th edition of the World Book Fair organized in the New Delhi? So the name is the National Education Policy 2020. Okay, next question is, who is the author of the By Many a Happy Accident Recollections of a Life? ओके, सो द आंसर इज़ मोहम्मद हमीद अंसारी. ये जो हमारे ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये 12th वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे 2007 से 2017 के बीच में. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट फायर पार्क वाज स्टार्टेड इन जनवरी 2021. ओके, सो द आंसर इज़ उड़ीसा. Which country has decided to rejoin the Paris Climate Agreement in the January 2021? सो ये ऑब्वियसली पता है हमें कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये दोबारा से जो है ज्वाइन करने की बात की थी और ज्वाइन किया जब ट्रंप ने जो है अपने टाइम पे इससे पुल आउट कर लिया था. सो द आंसर इज़ अमेरिका. Which newspaper was recently given the title of the champion publisher of the year 2020? Okay, so the answer is the Hindu Group. Lighthouse project is related to, so ये basically जो है providing the eco-friendly strong house related है. Okay, question 13. Which state of the Union Territory has launched the Super 75 Scholarship Scheme to promote the women's education? So the answer is Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir. Which app has been launched by the Government of India for the registration of the COVID-19 vaccine? Answer is the Cowin. आरोग्य सेतु में देखने को मिलता है हमें Cowin. According to the World Air Quality Report 2020, which of the following was declared the most polluted capital city in the world? New Delhi. Which country was chosen as the focus country at the 51st International Film Festival held in Goa? So the answer is Bangladesh. Which statement is true regarding the Global Climate Risk Index 2021 released by the environmental think tank German Watch? So the first statement is the Mozambique got the first place in this index, and the second was the India ranked 7th in this index. Okay, so the both are the correct as per the report. Kazakhstan was recently elected as the first woman prime minister of the which country? Answer is Estonia. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च द स्मार्ट अप उन्नति. सो ये HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था और बेसिकली ये क्या है, ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक मेंटरिंग प्रोग्राम होगा. विच कैंपेन वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द एल्डरली. सो ये जो है पोषण अभियान फॉर द एल्डरली. विच कंट्री रिसेंटली स्टार्टेड द फर्स्ट लार्जेस्ट वैक्सीनेशन क्लिनिक टू प्रिवेंट द कोविड एपिडेमिक? द आंसर इज न्यूजीलैंड. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 22. Which state government has announced to set up the COVID-19 Warrior Memorial? Okay, so the answer is Odisha. Okay, let's see the next question. The world's largest cricket stadium built in Gujarat is named after which person? Mr. Narendra Modi. Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of the memorial of the Maharaja Suhel Dev in which city of the Uttar Pradesh through the video conferencing? The answer is Bahrain. इंडिया इज़ कंस्ट्रक्टिंग मलबरी डैम, लालंदर डैम, इसको सैतूत डैम भी कहते हैं, और वो कौन सी नेबरिंग कंट्री में. सो बेसिकली ये इंडिया अफगानिस्तान में इसको डेवलप कर रहा था, बट अभी तो जो मतलब कि तालिबान का जो 85% जो है क्लेम है अभी, मतलब इन्होंने इतना ज़्यादा टेक ओवर कर लिया, तो उसके बाद जो ये सारे इंडिया के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी
बंद हो चुके हैं, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी जो है मतलब अभी डेंजर में है। हाल फिलहाल में सलमा डैम जो है, जिसको फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन का, उस पर भी जो है मतलब तालिबान के कुछ जो है मतलब पर्सनल्स ने उस पर अटैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। According to the recently released announcement, Andy Jassy will become the chief executive officer of the which company from July 2021। सो बेसिकली जो है अमेजन के जो जेफ बेजोस जो थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, स्टेप डाउन हो गए वो एज अ मतलब CEO। उसके बाद जो है ये एंडी जेसी जो है ये जुलाई 5 से अमेजन के CEO बने। Recently, the Chief Minister of the which state was awarded the Scotch Chief Minister of the Year award? So the answer is the Andhra Pradesh। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। Okay, who is the winner of the Femina Miss India World 2020? So the answer is Mansa Varanasi। According to the announcement recently released by the ISRO, in which year Chandrayaan 3 will be launched? So it will be launched by 2022। Which player was awarded the Alan Border Medal for the third time in the February 2021? So the answer is Steve Smith। So basically जो एक फॉर्मर ये जो है क्रिकेट के कैप्टन रह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के, और ये जो आलन बॉर्डर जो मेडल जो है ये बेसिकली जो है ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट इंडिविजुअल जो है मेल क्रिकेट के लिए जो है ये अवार्ड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एनिमल फॉसिल वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन द विच स्टेट? ओके, सो द आंसर इज़ मध्य प्रदेश। 33 which state government has recently announced to set up a police museum on decades? Okay, so the answer is Madhya Pradesh। Who won the women's single title at the 82nd National Table Tennis Championship held in the February 2021? So the answer is Manika Batra। Chris Morris, who became the most expensive player in the IPL 2021, belongs to which country? Okay, so basically he belongs to साउथ अफ्रीका। ओके, एंड ये जो है राजस्थान रॉयल्स के पार्ट थे एंड इनको जो है 16.25 में ऑक्शन में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंडिया कंडक्टेड नेवल एक्सरसाइज पासिक्स इन द अरेबियन सी विद विच कंट्री इन द February 2021? सो द आंसर इज़ इंडोनेशिया। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 37। Pongal festival was organized in the which state in January 2021? The answer is Tamil Nadu। World's largest floating solar farm is being built in the which country? So answer is Singapore। The 13th BRICS conference to be held in the 2021 will be chaired by which country? So India will be chairing it। Recently, which Central American country was declared the malaria free by WHO? So the answer is El Salvador। So basically ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। In which country freedom pineapple campaign was in the news recently? So the answer is ताइवान। So basically हुआ गया था इसमें, जब चाइना ने ताइवान से आ रहे पाइनएप्पल पे सैंक्शन लगा दिया था तो वहाँ के लोकल पीपल्स ने जो है वहाँ के लोकल प्रोडक्शंस को हर्ट ना करने के लिए, जो भी फार्मर्स थे उनके इनकम को इंटरप्ट ना करने के लिए उन्होंने क्या किया था, खुद ही जो है मतलब लार्ज क्वांटिटी में उसको खाना स्टार्ट कर दिया था और खुद ही परचेज़ करना स्टार्ट कर दिया था, सो डैट कि वो दिखा पाएँ कि मतलब वी आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर मतलब कि और डोमेस्टिक मार्केट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 42। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द इंडियाज़ टॉप ट्रेड पार्टनर इन 2021? सो बेसिकली ये जो चाइना ने दोबारा से रिक्लेम कर लिया था 2021 के फर्स्ट हाफ में ही जो है इसने अपना फर्स्ट स्पॉट जो है दोबारा से ले लिया था। एंड जो है बेसिकली जो ट्रेड जो रहा था वो $38 बिलियन का रहा था, हालांकि 15% पहले से जो है मतलब सेम फाइनेंशियल ईयर में उस टाइम तक का फर्स्ट हाफ ईयर का जो है उससे 15% कम रहा था, मतलब डिक्लाइन कर गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट यूनियन टेरिटरी वेयर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल बी यूज इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? सो द आंसर विल बी दिल्ली। जापान has recently started hydrogen production from the brown coal in collaboration with the which country? So the answer is Australia। Okay, Australia। आफ्टर द कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द इमरजेंसी यूज द वेस्ट वैक्सीन। जब हमारे पास जब सेकेंड वेव जब आया था तो हमने देखा था कि जो बहुत ज़्यादा डेथ टोल्स इंडिया में बढ़ रहे थे, मतलब डेली का कुछ 4-5,000 जो है मतलब कैजुअलिटीज़ हो रही थी, तो उसके बाद जो हमने जो हमारा वैक्सीन एक्सपोर्ट था उसको हमने बैन कर दिया एंड इनफैक्ट हमने प्रोक्योर करने का सोचा और हमने जो रशिया की जो स्पुतनिक दी वैक्सीन है उसको भी हमने प्रोक्योर करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विद विच कंट्री हैज़ चाइना रिसेंटली सस्पेंडेड इकोनॉमिक डील्स? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने देखा था कि जब से ये
एक्चुअली जब कोरोना जब से स्टार्ट हुआ, इनफैक्ट तभी से जो है मतलब ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना के बीच में कुछ टसल चल रहा है। इनफैक्ट जो है चाइना ने यहाँ तक बोल दिया था कि मतलब ऑस्ट्रेलिया इज़ लाइक च्युइंगम स्टिक टू माई बूट, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट दे दिया था। नेम द कंट्री ईरान हैज़ केप्ट आउट फ्रॉम इट्स फरजाद बी गैस प्रोजेक्ट। सो इंडिया की ONGC विदेश जो लिमिटेड जो कंपनी है, इसने जो है इस गैस मतलब कि साइट को एक्सप्लोर किया था बेसिकली, बट इन्होंने जो है मतलब ईरान की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि डोमेस्टिकली जो है फरजाद बी गैस प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे एंड इंडिया को इससे आउट कर दिया। नेक्स्ट वन इज़ द सेहत OPD पोर्टल वॉज लॉन्च बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। सो बेसिकली ये जो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। इसका जो बेसिकली जो इनाग्रेशन जो था वो राजनाथ सिंह ने किया था। जैस्मिन हैरिसन रिसेंटली बिकेम द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द अटलांटिक ओशन, सी इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री। सो ये 21 ईयर की एक ब्रिटिश जो है वुमेन है, जो बेसिकली उन्होंने यहाँ से वेस्टर्न जो है सहारा डेजर्ट है उसके पास से जो है कैनरी आइलैंड है, वहाँ से लेकर के इन्होंने एंटीगुआ जो कैरेबियन आइलैंड में से आता है वहाँ तक 70 डेज़ में इन्होंने सोलो रो करके जो है इसको मतलब क्रॉस किया। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मच मनी इज़ टारगेटेड टू बी रेज थ्रू डिस इन्वेस्टमेंट इन द यूनियन बजट फॉर द 2021-22। सो बेसिकली जो है जैसे कि जो भी गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ हैं जैसे कि LIC या फिर बाकी जो भी कंपनीज़ हैं जैसे ONGC वगैरह, सो उनमें क्या किया जाएगा कि जो गवर्नमेंट का जो 100% स्टेक है उसको कुछ स्टॉक मार्केट वगैरह पे जो है लिस्ट करके एंड उसको डिस इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, या जो है फुली उसको 100% डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि इन जो टारगेट कितना रखा गया, ये 1,75,000 करोड़ का टारगेट रखा गया। ओके, सो थैंक यू गाइस।